Good evening, friends. So we are meeting on Sunday for some other sessions. So most probably every Sunday, or let's say maybe alternate Sundays, we'll try to have some of these exciting sessions. So today I'm picking up Microsoft Excel as a topic. Excel is something that you cannot finish off in one session. It needs a lot of sessions. I'm not going to show you how do you do the data entry or how do you apply the plus, minus, something like that. That basic is assumed to be known to every student. As a chartered accountant or as a finance professional, you need to do a lot of data analysis. Data is the oil. I had told you very specifically, data is going to be the oil. If Mukesh Ambani made a huge amount, or Ambani Reliance Industries made a huge amount of money by extracting oil and selling it oil products or petroleum products, the next 2 decades, 3 decades is going to be analysis of that data. So as a beginner, a basic tool for analyzing data is a Microsoft Excel. I would not say that it is a basic also, because a lot of advanced data also can be analyzed by Microsoft Excel if you use Excel in combination with various other tools that are available. So I'm going to take you off to a basic tool first called as a pivot table for analysis of data. I'm going to begin up with the pivot table today. So hopefully I should be able to cover a good amount of pivot table, and then some formulas I'll explain. So today I'm keeping a level of difficulty to be a bit medium one. It's not very basic also. It's not very tough also. It's medium one. It's interesting one. So like this, I will create a lot of sessions, but all of these sessions and all of the time that we are going to spend, you will cherish this for your entire lifetime only if this year results into success for intermediate. It should not happen that you fail in an intermediate and you do good things at other points. So you should remember that your primary focus on the bookish knowledge or education knowledge is there. In addition to that, you sharpen up your skills through these sessions. I hope you will pay attention to that. So without wasting the time, let me kickstart. I'll share my entire screen. So there is nothing of there's no problem. So I'll share the entire screen. So even if I switch from one application to the another application, you will be able to see. So I'm sharing my screen right now. So let me minimize the zoom. I kick off with Microsoft Excel. So I had downloaded one sample file from internet some time back. So let me just show you of that sample file. Yes. So this is a basic file of a sales data that I have downloaded from some website. I don't remember the name also. I just said, let it be. So there is a huge amount. It's a basic analysis of data that we are going to do. Today, I'm showing you basic with the limited data that I have downloaded, 450. But if you people give me a opportunity, we will not be able to cover up today, but maybe in a next Sunday session or thereafter, I will make you go mad. Like, I'll just show you. There is one hypothetical company for which we had done the analysis way back in some, I don't remember the year. Contents of sales. This is a power pivot. Millions of rows. When did I create? This is 21st February. File cup create get 2010. Somewhere in 2010 batch I had created. At that time I used to teach information technology, course resources, IPCC, subject resources, information technology, and there is something called as a power pivot. So it's amazing. Like right now I'm showing you the analysis of just 400, 500 rows, but that particular file has 22 lakh transactions, hypothetical transactions, not actual transactions. And from that 22 lakh transactions, you have to analyze the data. But this is a base. This lecture is going to be the basis first to create the interest on a small level of data, and then I will make you mad. Like if you people give me a lot of time and let's say resources in addition, but ये सब कब मजा आएगा जब तुम proper lectures देखते हो, backlog नहीं करते हो, homework करते हो, right? तब जाके मजा आएगा.
So this is a data file and I want to do an analysis of that data. See, ये data है, क्या है? Sales का database है. This is the data of the sales. So date when you are sold the goods, maybe let's say color of the product, आपका जो product है उसका color है, या maybe you could imagine it as a car. So it has blue color, green color, red color and silver color. मतलब product का color है ये. This is not the color of the sale. Region, कौन से region में आपने sell किया? East, North, South and West. That is normal region through which you have sold goods. Then unit, quantity कितना sell किया तुमने और तुम्हारा sales का amount क्या है. So this is total amount. So here your rate is $12. 8 quantity are sold at the rate of total 96. So $8 per unit. Sorry, $12 per unit. तो ये basic data है sales का. अब मुझे इस data के हिसाब से कुछ analysis करना है. I want to get an insight into the data. So in Microsoft Excel, there are a lot of tools for getting the insight into the data. Basic tool is pivot table. But at an advanced level of data analytics is what I want you people to really go through. But first, obviously, you should get a good grip over the basic. Advanced level, you have a Power Pivot, you have a Power Query, you have a Power Business Intelligence, BI, you have data analytics, expression, DAX. There are a lot of things coming up your way in a subsequent sessions that we'll have. So I'm taking up the basic analytical tool. So where do you find out these tools? So if you go to the data, there are some tools which allow you to get and transform data. These are going to be useful, extremely useful when I'm going to cover up the Power Pivot and Power Query. See, many a times your data resides in a ERP package. I hope you understand ERP package. तो जो आपका अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर होगा, या जो आपका सेल्स का सॉफ्टवेयर होगा, या जो आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होगा, उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये सब कुछ डेटा है, राइट? सो ऑल ऑफ योर डेटा resides into that particular software. ठीक है? तो I want the data in that ERP package or that database to remain intact as it is. और वहां से मुझे वो डेटा सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है और उस डेटा का एनालिसिस करना है लाइव बेसिस पे. मतलब मार्केटिंग वाला बंदा सेल्स कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में सेल्स हो रहा है, बट आई वांट टू सिट हियर इन फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड आई वांट टू कीप ऑन एनालाइजिंग दिस डेटा फॉर द सेक ऑफ decision making, for the purpose of getting insights. So there can be lot of insights that you could get through the data. Huge amount of insights. तो उसके लिए ये get and transform data होता है. I will explain that at the time of Power Query. So you can connect to the external, you can connect to another file, or you can collect the database, SQL database, Microsoft Access database, or Microsoft का Azure करके service है, or there are a lot of other services that are available. SharePoint करके होता है, Amazon Web Services हो सकता है, कहीं से भी आप data pull कर सकते हो. So there are a lot of tools available. As simple as that, you can get an example. You are keeping your books of accounts in Tally. Tally का basic ERP package आप use कर रहे हो, और Tally से आपको data extract करके कुछ analysis करना है. You can do that at a very basic level. At an advanced level, there are Power Query options. तो ये base आपको data extract करने के लिए options है. Then if you can see, I have something called as a Power Pivot there. If you can see at the top. So Power Pivot करके चीज है, कुछ समझ गया? So ये Power Pivot है, ये this is a next level of pivot table. Today I'm going to explain you pivot table. ये ऐसे बहुत सारे add-ins होते हैं, ये बहुत खतरनाक है. मतलब यहाँ पर हमको जाना है. मतलब if you people can really understand this, in the previous batch I tried to explain Power Query. मैंने बोला 60 बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया, अल्टीमेटली उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया 8 या 10 बच्चों ने. Percentage was 2% students were interested. You people don't know the value of the knowledge that you are getting. तो आप अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहोगे तो मैं आपको ये अगले सेशन में या उसके बाद जब भी आपका थोड़ा सा ब्रेन डेवलप होगा तो आई विल एक्सप्लेन यू दिस पावर पिवट. बेसिकली क्या है, जो डेटा तुम्हारे बिजनेस यूनिट्स जनरेट करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया,
या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का डेटाबेस हो गया. Keeping that data intact as it is, I want Microsoft Excel to give me some insight about the data, and that is possible through these tools. So ये पावर पिवट हो गया. ऐसे पावर क्वेरी वगैरह चीजें होती है, वो आपको मैं अलग दिखाऊंगा. आज मैं आपको सिर्फ पिवट टेबल दिखाने वाला हूँ, एंड कुछ फंक्शंस है एक्सेल के that I will explain after I finish up with the power basic pivot table. तो ये सेल्स का डेटा है. I want to analyze a data. So how do I pull it off? Let me just present it. ये आपके कॉलम से डेट when the sales took place, color of your product, region, quantity and the sales. Everyone is clear with this? कुछ नहीं, आपको जो भी डेटा है ना, उस डेटा को सिलेक्ट करो आप पूरा. So I'm using shift and arrow key. I selected the entire data, shift control down arrow. तो पूरा डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया. अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे तो एज आई सी, ये मेरा रो नंबर 1 है. रो नंबर 1 क्या है? डेट, कलर, रीजन, यूनिट एंड सेल्स. इफ आई एम कमिंग डाउन, ऑटोमेटिकली इफ यू सी एट द टॉप कॉलम ए बी सी डी ई, उनके नाम चेंज हो गए. देखो, डिड यू ऑब्जर्व? देखो ऊपर गया तो क्या है कॉलम ए बी सी डी ई. नीचे आ गया तो देखो, अभी नीचे आ रहा हूं मैं थोड़ा थोड़ा, वो डेट जैसे ही गायब हो गया तो ऊपर ए बी सी डी ई चेंज हो गया. दिस बेसिकली हैपेंस व्हेन व्हाटएवर डेटा यू हैव, यू generate a name, you create a table for that data, you put up the data in the table format. So अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, ये टेबल नंबर 12 है, ऐसे एक टेबल डाला है. So when I click on table 12, ये टेबल 12 आ गया. I can obviously, this is the name that I given, table 12, वहां पे जिसने ये किया है. So table 12 is there, and from that table 12, whenever you put up the data in a table format like this, you will be able to get data. You will be able to get the headings going up in A, B, C, D, E. So, like for example, देखो अभी यहाँ पर मैं कुछ अलग लिखता हूँ. यहाँ पर I write quantity, rate, and amount, and I scroll down. If you see, क्या रह गया? HIJ ही रह गया. टाइटल चेंज नहीं हुआ कॉलम का. सो इसको चेंज करना है तो क्या करेंगे? ये सिलेक्ट किया मैंने ऐसे, राइट? आई सिलेक्टेड, लेट्स अज्यूम दिस मच इज डेटा इज देयर. You go to this left hand side. Can you find it left hand side? Or you can do a right click, and right click करके define name करके option आता है. क्या आ गया? Define name. So you can give it a name. So and you can insert a table. Very simply, if you can do it, insert table करके option आता है. Control T, वहां से भी जा सकते हो आप. So I say insert table. ये मेरा डेटा है. My data has a header. मैंने इसको ओके कर दिया. देखो टेबल तैयार हो गया. उसका फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो, व्हाटएवर फॉर्मेट यू वांट. नाउ इफ यू सी, आई विल स्क्रॉल डाउन, HIJ चेंज होगा. देखो अभी मैजिक होने वाला है. मैजिक नहीं हुआ साला, डेटा ही नहीं. हाँ हो गया, थोड़ा लेट हो गया. डेटा थोड़ा सा लेट हो गया. इट हुआ था, इफ यू सॉ, इट इज हैपनिंग लिटिल लेट. क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आ रहा है, थोड़ा सा लैग हो रहा है. देखो, now the moment I go to the 11 number row, moment I am within the table, I must be within the table. Table का range जो है ना, मैंने वो कम कर दिया है. I need to increase the range. I kept a range to be lesser. So if you see, ये मैं यहाँ से नीचे से आ गया, and then I come down to 11th row. I kept a lesser number of rows. So that was entirely visible on one screen. See, now I'm on 11th screen. HIJ change होके quantity, rate, amount हो गया. So this helps you a lot when you are going to analyze the data. तो मैंने डिलीट कर दिया उस टेबल को. ये मेरा टेबल है. अब इस टेबल को मुझे फर्दर एनालाइज करना है, तो मैं क्या किया? इसको सिलेक्ट किया. आई सिलेक्ट टेबल. ऑब्जर्व, यू कैन गिव नॉन वर्बल फीडबैक रिएक्शंस इफ यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग. इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, जस्ट टाइप देयर, आई विल कम टू नो. सो मैं यहाँ पर किया है, जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन लिमिटेड है यहाँ पर. हाँ, तो अभी ये मेरा डेटा है, मैं सिलेक्ट किया उसको. ये डेटा को मैंने सिलेक्ट किया. आई गो टू इंसर्ट. इंसर्ट के अंदर यू कैन सी अ पिवट टेबल. यू कैन सी अ पिवट टेबल. पिवट टेबल क्या करेगा? आपके डेटा में जो भी कॉलम्स है, कॉलम को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं फील्ड. कॉलम को बोलते हैं फील्ड्स, एंड रो को बोलते हैं रिकॉर्ड्स.
रिकॉर्ड, ये स्कूल में सीखा होगा तुम लोगों ने कहीं ना कहीं, तो आईटी होगा तो, या 11th-12th। तो ये जो फील्ड्स है, उस फील्ड को आपको जैसे भी स्ट्रक्चर करना है, यू कैन डू इट यूजिंग पिवट टेबल। सो आई क्लिक ऑन पिवट टेबल, इट सेज चूज द रेंज दैट यू वांट टू एनालाइज। तो रेंज मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया था, उस रेंज को मैंने नाम दिया था टेबल नंबर 12, तो उसने पिकअप कर लिया टेबल 12, और अदरवाइज इट विल गिव यू रेंज। और यू कैन यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स। एक्सटर्नल डेटा सोर्स मतलब मैंने आपको बोला ना, ईआरपी पैकेज में डेटा है, यू कैन गिव द लिंक टू दैट डेटाबेस, दैट आई विल टीच यू इन लैटर सेशंस। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। और आपको जो एनालिसिस करना है, डू यू वांट एनालिसिस ऑन द सेम शीट और डू यू वांट एनालिसिस ऑन द अनदर शीट? So total file is called as a workbook. Within the workbook, you have got multiple sheets. So I say new worksheet. I did not say new file. I said a new worksheet. I click on OK. वो नीचे का जो है add this data to the data model, ये थोड़ा अलग है। data model थोड़ा बाद में समझेगा आपको, power pivot जब explain करूंगा तब data model समझेगा। Right now data model you will not understand. I click on OK. अब देखो OK क्लिक करने के बाद क्या हो गया? What happened when I clicked OK? जो भी फील्ड्स थे वो फील्ड्स वहां पे लिस्ट हो गए। क्या क्या फील्ड्स है? डेट था, कलर था, रीजन था, क्वांटिटी था एंड वैल्यू था। वो देखो पांचों के पांचों फील्ड्स वहां पर आ गए। कैन यू सी द फील्ड्स हियर? पिवट टेबल फील्ड्स, ये 5 फील्ड्स आ गए। नाउ आई कैन क्रिएट अ रिपोर्ट द वे आई वांट यूजिंग दिस 5 फील्ड्स। ये 5 फील्ड मेरे पास है, मैं बेसिक एक टेबल बना सकता हूं। I can make a basic table on the basis of these 5 fields. Basic table बना सकता हूं, और I can make a charts also. तो मैं धीरे धीरे आपको पागल करने वाला हूं, पागलपन शुरू है। I hope you people are ready for the madness. So ये 5 फील्ड है। नीचे देखो ड्रैग फील्ड्स, ये आपको स्क्रीन पूरा जूम का भी पार्ट दिख रहा है, या यू पीपल आर एबल टू सी ओनली एक्सेल? ये जूम का मैं कमेंट्स थोड़ा बीच बीच में ला रहा हूं सो दैट आई कैन सी इट। यू पीपल आर नॉट एबल टू सी दिस कमेंट्स ना, सो दैट मतलब आपका स्क्रीन डिस्टर्ब नहीं हो रहा ना? मेरा स्क्रीन बहुत छोटा दिख रहा है मेरे को। यू पीपल आर एबल टू सी ओनली एक्सेल, हाँ दैट इज गुड, वो अच्छी बात है। ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा स्क्रीन कम दिख रहा है मेरे को, तो प्लीज बेयर विथ मी। सो ये आपके 5 फील्ड्स है, वो फील्ड्स को आप ड्रैग कर सकते हो। कहां पर? नीचे देखो 4 सेक्शंस दिखाई दे रहे होंगे तुमको। यहां पर देयर इज अ फिल्टर सेक्शन, देयर इज अ कॉलम सेक्शन, there is a row section, and there is a value section. Now let me explain what happens with them. I'll turn off all the comments out here. यहां पर you can see this is the area. यहां पर जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, ये मेरा माउस को ट्रैक करते रहना। whatever you are going to do, report you want to create, वो रिपोर्ट जो क्रिएट होगा वो यहां पे डिस्प्ले होगा। let us say ये मेरा बेसिक डेटा है, रीजन है और सेल्स है। मुझे रीजन वाइज सेल्स चाहिए, बस सिंपल रिपोर्ट चाहिए। अभी मैं बेसिक रिपोर्ट कर रहा हूं, उसको धीरे धीरे हम एडवांस में लेके जाएंगे। अरे तुम पागल हो जाने वाला है पक्का। तो मेरे पास क्या है? रीजन है, उस रीजन का सेल्स है। सो आई वांट अ टेबल, वेरी सिंपल टेबल, रीजन ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, व्हाटएवर, ये 4 रीजन, और उस रीजन का सेल्स कितना है। प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट नहीं चाहिए मुझे, टोटल सेल्स चाहिए। तो आई वांट सम ऑफ सेल्स फॉर ईच रीजन। आर यू ओके विद दैट? ओके, थैंक यू। तो अब मेरे को वो चाहिए, तो मैं क्या करेगा? रीजन बाय रीजन चाहिए ना, तो मैं रीजन सिलेक्ट करेगा। देखो रीजन, तो रीजन मुझे कहां पर चाहिए? ऐसे रोज चाहिए रीजन के, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, और उसके आगे सेल्स मेरे को चाहिए। देखो रीजन मैंने उठा लिया, आई क्लिक इट, ड्रैग इट, क्लिक करके आपको मतलब उसको आपको ड्रैग करना है। ड्रैग करके मैं लेके आया उसको रो पार्ट में। सो देखो रोज में आ गया क्या रो में? ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, गुड। अब मेरे को सेल्स चाहिए उसके सामने। सेल्स विल बी इन द वैल्यूज। आपको रिपोर्ट कैसा चाहिए? आपके रोज में, आप रोज मतलब गुलाब का फूल नहीं तो वैलेंटाइन डे अभी अभी हो गया, आप गुलाब पे जाओगे। सो रो में मेरे को रीजन चाहिए और उसके सामने वैल्यू चाहिए। वैल्यू क्या चाहिए? आई वांट सम ऑफ सेल्स। तो मैं सेल्स को उठाएगा, वैसे ही ड्रैग करेगा, लेकिन वैल्यूज में ड्रैग करेगा। वैल्यू, तो मैंने वैल्यू में ड्रैग किया, देखो आ गया रिपोर्ट। गनो चौको रिपोर्ट बन गए हो। आई जस्ट गॉट अ रीजन एंड आई गॉट सम ऑफ
सेल्स, बेसिक, बहुत बेसिक, उधर से उठाया मैंने यहां पे डाल दिया, एज सिंपल एज दैट. एंड आई टुक द सम. अगर आपको सम नहीं चाहिए, कभी कभी आपको जस्ट काउंट चाहिए कितने से, इन दिस केस सेल्स का कुछ काउंट नहीं होता है, बट इफ यू वांट, तो आई वांट टू नो, लेट अस से एवरेज सेल्स ऑफ ईच रीजन. टोटल सेल्स इज 26,356. आई वांट एवरेज. तो सम के ऊपर क्लिक करना है यहां पर, and you can just change the field का setting. Sum is a field और sales is a field. उस sales का मेरे को setting change करना है. I click on that. Then I have taken right now sum. If you want the average, you can take average. I clicked on average. आ गया average. ससुरा average आ गया. Average sales of east region are 57, north region 63, 54 out there. तो जो भी sales total हो गया तुम्हारा divided by number of transactions that have taken place. As simple as that. कितना आसानी से बन गया ये बहुत बेसिक है. अभी हम जाएंगे. ये बेसिक था, बट आई डोंट वांट एवरेज, आई वांट सम. आई वांट सम. तो मैं सम पे ऊपर वापस गया. जस्ट मिनट, लेट मी स्टार्ट द फैन. सो जस्ट ऑब्जर्व. सो मेरे पास क्या आ गया, रो रीजन आ गया और वो रीजन का सेल्स आ गया. बट अभी मेरे को मैनेजर बोलता है यार कौन से प्रोडक्ट का सेल्स ज्यादा है, कौन से प्रोडक्ट का सेल्स कम है. इमेजिन करो, ये जो यहाँ पर कॉलम है ना अपना कलर वाला, इमेजिन दैट कलर इज योर प्रोडक्ट, रेड कलर का प्रोडक्ट. या इमेजिन यू आर सेलिंग कार्स, तो रेड कार कौन सी बिक रही है, ब्लू कार ज्यादा बिक रही है, ग्रीन कार बिक रही है. इमेजिन ये आपका मॉडल है. So you need to know which color is more popular or which product is more popular. Yeah, imagine that is a salesman. कौन सा salesman popular है, कुछ भी है आपका. You can have multiple columns. तो अब मेरे को क्या चाहिए, I want sales, but not just the region wise. Region के अंदर कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है वो भी चाहिए मेरे को. चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम मेरे को बाद में बोलो, मैं तुमको जो चाहिए वो दे देगा. अब मैं क्या करेगा, पिकअप करेगा. किसको पिकअप करना है, कलर. कलर मतलब मेरा प्रोडक्ट, कलर फील्ड को मैंने पिकअप किया. रीजन के अंदर मेरे को रिपोर्ट चाहिए, ईस्ट रीजन. ईस्ट रीजन के अंदर कलर 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 कलर, उसका सेल्स कितना है. देखो अभी पागल होने वाला है तुम. मैं कलर को पिकअप किया, रो के अंदर डाला, लेकिन रीजन के अंदर डाल रहा हूं. देखो ऑब्जर्व करो. इफ यू आर एबल टू ऑब्जर्व, इट विल हैपन इन फ्लैश ऑफ अ सेकेंड. कलर हो गया, रिपोर्ट बन गया. कलर को वहां पे आके मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया. I will share this data with you people after the lecture is over and you can play with it. आज मैं आपको सिर्फ 400 रुपए लेकर दे रहा हूं. अगले संडे को हमको 22 लाख रो पे जाना है. कितना, 22 लाख. तब तो तुम पागल होने वाला है. 22 लाख रोज एंड अबाउट 100 कॉलम्स. उतना बड़ा डेटा देगा मैं तुमको, और उसके ऊपर खेलने का अपने को. अरे मजा आता है खेलने के लिए. सो आ गया, क्या आ गया, रीजन वाइज सेल्स आ गया. सो मेरे पास आ गया ईस्ट रीजन में 3730 सेल्स हुआ टोटल. ब्लू प्रोडक्ट का इतना, ग्रीन का इतना, रेड का इतना, सिल्वर का इतना. चौको 6. हाँ, अब तुमको फॉर्मूला लगाना है इसके ऊपर. तुम परसेंटेज सेल्स लगा सकते हो अगर आपको चाहिए. बहुत कुछ करेंगे अभी, 2 मिनट रुको तुम. अब मेरे को ऐसा नहीं चाहिए. मेरे को ये ईस्ट के अंदर 4 रो आ गए वापस, नॉर्थ के अंदर 4 रो आ गए. ऐसा नहीं चाहिए मेरे को. मेरे को ऐसा चाहिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 4 रीजन, 4 प्रोडक्ट. आई वांट 4x4. देखो मेरे को स्ट्रक्चर चेंज करना इमीडिएटली. मेरे बॉस ने बोला मेरे को ऐसा नहीं डेटा चाहिए. मेरे को कैसा चाहिए, ये 4 रीजन है, ये 4 प्रोडक्ट है, उनके वैल्यू चाहिए. समझ गया क्या दिमाग में? कैन यू इमेजिन? पब्लिक नॉन वर्बल फीडबैक इज देयर. रीजन्स, प्रोडक्ट्स, वैल्यूज. देखो अभी मैं क्या करेगा, वो जो प्रोडक्ट है ना उसको मैंने रो के अंदर डाला था, उसको उठा रहा है मैं. देखो ऑब्जर्व करो, मैं गया वापस इधर, कलर को उठाया मैंने और कॉलम में डाल दिया मैंने. बन गया. ओ माय गॉड, हो गया. कौन है रे, फास्ट फॉरवर्ड करो बोल रहा है वो, और फास्ट जाओ बोल रहा है. पकड़ के मारेगा साले. फास्ट फॉरवर्ड. मेरे को सब बच्चों को सिखाना होता है. हर एक बच्चे के लिए मैंने सिखा रहा है. तुमको बोर हो रहा है तो निकल जाओ तुम. सो थर्ड क्लास पब्लिक. सो देखो क्या हो गया, 4x4 आ गया.
जस्ट 4x4 डेटा आ गया, परफेक्ट डेटा आ गया 4x4. So I got a data in a perfect 4x4 column. So I got east, north, south, west. 4 रीजन आ गए, 4 प्रोडक्ट आ गए, उसका सम आ गया. देखो मतलब मैं क्या कर रहा हूं, द डेटा इज सेम, यहां पर डेटा सेम ही है. इफ यू ऑब्जर्व, उस डेटा के ऊपर मेरे को जैसे चाहिए वैसे मैं रिपोर्ट मैनेज कर सकता हूं. आई कैन मॉडिफाई द रिपोर्ट द वे आई वांट. I can modify the reports way I want. So let me, sir, can you repeat 4x4 column? Okay. Let me repeat. Let me just go back. एक ये प्योर टेबल है, मैं वापस बेसिक पे जाता. कैसे बेसिक में जाएगा? मैं क्या करता, देखो ये जो फील्ड्स है ना, मैंने फील्ड्स को मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया था. तुमको फील्ड समझा क्या बच्चों? नॉन वर्बल फीडबैक देता हूं. फील्ड 4 कॉलम थे मेरे डेटा में, वो उनको फील्ड बोला मैंने. फील्ड खेत नहीं है, खेत की बात नहीं कर रहे हैं हम. एक्सेल के अंदर फील्ड्स है, तो उन चारों फील्ड्स को मैं वापस लेके जाता हूं, रिमूव करता हूं. देखो मैं रिमूव कर दिए, सब कुछ रिमूव कर दिया मैंने. ओके चलो मैं वापस डिलीट ही कर लेता हूं, पूरा शीट डिलीट कर लेता हूं. क्या एक आधा सेकंड लगता है करने को? वापस मैंने शीट डिलीट कर लिया, वापस आ गया मैं डेटा पे. ये अपना बेसिक डेटा है सेल्स का. क्या कॉलम है? डेट, कब सेल हुआ, कौन से मॉडल का सेल हुआ, कौन से रीजन में हुआ, कितना क्वांटिटी हुआ और क्या है. ये डेटा को मैंने सिलेक्ट किया, शिफ्ट राइट एरो एंड कंट्रोल डाउन एरो, पूरा डेटा सिलेक्ट करना. उतना बेसिक एक्सेल आपको आना चाहिए, मतलब आई अज्यूम स्कूल में उतना तुम सीखे होगे. सिलेक्ट कैसे करना है? शिफ्ट एंड डाउन एरो. तो शिफ्ट सिलेक्ट किया मैंने, आई गो टू इंसर्ट एंड प्लीज प्ले विद दिस डेटा. मैं आपको डेटा शेयर करूंगा लेक्चर होने के बाद, उसके साथ खेलने का है तुमको. तुम खुद करेगा ना, फीलिंग अलग आएगा. आई गो टू प्योर टेबल. बाकी अभी कुछ मत फोकस करो, आई एम गोइंग टू टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स. कहां पर ड्रॉप करना है? ये न्यू वर्कशीट पे ड्रॉप करना है. मैं गया वहां पर. अब मेरे बॉस ने बोला कौन से रीजन में कौन से प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ, बोलो मुझे. मैं बोलता ठीक है सर, रिपोर्ट बना के देता सर मैं. अब मैन्युअली आप टोटल लेते बैठोगे? नहीं, मैं रीजन सिलेक्ट किया मैंने. देखो रीजन मेरे को ऐसे रो में चाहिए, रो में रीजन चाहिए, और कॉलम्स में प्रोडक्ट चाहिए. रेड, ब्लू, ग्रीन, ये मेरे प्रोडक्ट या कलर चाहिए, कलर का फील्ड. तो 4x4 स्ट्रक्चर हो गया. 4x4 मतलब ये गाड़ी नहीं है. 4x4 एक्सप्लेन करो. अरे 4 रीजन है, 4 प्रोडक्ट है. फॉर एग्जांपल हमेशा 4x4 रहेगा ऐसे जरूरी नहीं है. तो मैं रीजन को पिक किया, रो में डाला मैंने, रो में डाला. देखो रो में रीजन आ गया. तुमको रो में कलर चाहिए, आएगा कलर रो में भी, और कलर जो है वो मैंने कॉलम में डाल दिया. देखो उधर नीचे 4 है. ये फील्ड्स को आप स्ट्रक्चर कर सकते हो, ये फील्ड्स को आप स्ट्रक्चर कर सकते हो द वे यू वांट. द वे नहीं वांट है आपको, द वे यू वांट. सो रो मैंने ले लिया, कॉलम मैंने ले लिया. अब मेरे को क्या चाहिए? सम चाहिए सेल्स का. सेल्स अमाउंट का मेरे को टोटल चाहिए, तो मैंने सेल्स को ले लिया और वैल्यू में डाल दिया. सेल्स का क्या करो? सम करो. आ गया रिपोर्ट. आई होप यू अंडरस्टूड 4x4. कौन था रे वो 4x4 का डाउट पूछने वाला? ऋतिक शाह. अरे यार ऋतिक शाह, प्राज्वल अजडकर. आई होप यू पीपल कीप अ ब्रेन लेवल्स अपराइट. तो अब यहां से आगे मैं कोई वापस एक्सप्लेन करो, मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला. 4x4 आ गया, खतरनाक. अरे तुम तो और पागल होने वाला. ये जस्ट बेसिक शुरू किया मैंने सिर्फ अभी. तो ये डेटा आ गया 4x4 का डेटा. तो मेरे को क्या मिल गया? रीजन बाय रीजन, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, सेल्स कितना है समझ गया, हाँ है ना. बट ये मैन्युअली समझ, मतलब ये मेरे फिगर सारे, मेरे को ग्राफ चाहिए. ग्राफ भी दिखाऊंगा आपको इसका ड्रॉ करके मैं. बट मेरा बॉस बोलता है नहीं यार मेरे को, या तुमको डेटा रीजन वाई रीजन चाहिए. लेट्स से यू वांट अ कलर हियर, रीजन के अंदर कलर चाहिए. आप कलर इधर ले सकते हो, रिपोर्ट ऐसा भी बन सकता है. देखो आपको रीजन कॉलम में चाहिए, रीजन को कॉलम में लेके जाओ. उल्टा किया मैंने. देखो ब्लू को इधर लाया, रीजन को उधर लेके गया, सेल्स आ गया. इधर उधर द वे यू वांट, जैसे चाहिए वैसे कर लो आप. अब आपको ईयर बाय ईयर का फिल्टर लगाना है. देखो यहां पे डेटा में ईयर था. ईयर क्या था? डेट वाज 2016, 17, 18, 19. ऐसे 4 साल के सेल्स है यहां पर.
तो यू वांट टू पुट अ फिल्टर ऑफ द ईयर, कौन से ईयर में कितना सेल हुआ रीजन के अंदर, वो चाहिए तुमको। ठीक है, तुम ईयर को, ईयर मतलब डेट, डेट को देखो मैं उठा रहा है, डेट को उठा रहा है, मैं उठाया, फिल्टर में डाल दिया मैंने, फिल्टर में डाल दिया। अब वो सब के सब डेट दिख रहा है मेरे को, ईयर नहीं आया। ओ मम्मी, ईयर नहीं आया मम्मी, ईयर नहीं आया, उधर सारे के सारे डेट आ गए, तो कैंसिल किया मैंने वापस, डेट को मैंने निकाल दिया, चल निकल, मतलब उधर से उठा के बाहर फेंक दिया, डेट चला गया। लेकिन मेरे को ईयर चाहिए, ईयर बाय ईयर चाहिए ना, 2 मिनट रुको, देगा सब कुछ देगा, ईयर बाय ईयर, क्वार्टर बाय क्वार्टर, तुमको जो चाहिए ले लो, क्वार्टर वो वाला नहीं। देखो अभी मैं डेट को क्या करता है, मेरे को एनालिसिस चाहिए। देखो रीजन को मैं यहां पे लेके आता वापस, कलर को उधर लेके जाता, ईस्ट रीजन का 2016 का कितना हुआ, 2017 कितना हुआ, 2018 कितना हुआ, 2019 कितना हुआ, ये 1121 जो है ना ब्लू का, ये ऑल ईयर्स पुट टुगेदर है। मेरे को ईयर बाय ईयर चाहिए, सो दैट आई कम टू नो कौन से ईयर में लगी है या कौन से ईयर में ज्यादा फायदा हुआ है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व, डेट को मैं उठा रहा हूं और रो में लेके जा रहा हूं, रो, ऑब्जर्व रो, द मोमेंट आई ड्रॉप इट, यू मैजिक विल हैपन। आर यू रेडी फॉर मैजिक? यस, मैजिक हैपेंड। सिर्फ ड्रॉप करने का, एक्सेल रिकॉग्नाइजेस दैट डेटा इज इन डेट फॉर्म। क्या हुआ, 2016, 2017, 2018, 2019, पब्लिक कहां से आया ईयर, एक्सेल को समझ गया डेट है, उसने 2 फील्ड ऐड कर दिए मैन्युअली। देखो यहां पर क्वार्टर ईयर, क्वार्टर ईयर, वो डेट में से उसने Q1, Q2, Q3, Q4 ले लिया। अभी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है एक्सेल का, जो मैं अभी तक सॉल्यूशन नहीं ढूंढा, वो क्वार्टर 1 कैलेंडर ईयर के हिसाब से लेता है, इट डजंट टेक अ क्वार्टर एज पर फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आपको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से क्वार्टर्स चाहिए ना, तो आपको उधर एक कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा बेस डेटा में, क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यू हैव टू फाइंड अ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बट अभी उसने जो क्वार्टर लिए ना, वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से लिए। देखो तो अब मेरे को क्या मिल गया, ईस्ट रीजन का सेल्स 1121 था फॉर ब्लू प्रोडक्ट इन 2016। चिल्ला चिल्ला के मेरा, ए तुमको नॉर्मल सुनाई दे रहा है ना, तो मैं चिल्लाता नहीं, कल लेक्चर भी लेने का है। 180, 516, 217, 2808, कोई तो कमी ना है सर, तुम्हारा आवाज कम आ रहा है बोल रहा है। सो मेरे को ईयर बाय ईयर मिल गया, ईयर के अंदर क्वार्टर चाहिए, तो क्या करो, कोलैप्स करो उसको, कोलैप्स, और सॉरी कोलैप्स नहीं, माय मिस्टेक, एक्सपांड करो, 2016 को एक्सपांड करो। देखो 2016 को मैं एक्सपांड कर रहा है, ओ क्वार्टर आ गया, क्वार्टर एक्सपांड कैसे किया, प्लस के ऊपर क्लिक करो, वो एक्सपांड हो जाता है। क्वार्टर, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और 3, ओ ड्राई क्वार्टर था ये, ब्लू प्रोडक्ट का सेल्स हुआ ही नहीं उन 2 क्वार्टर्स में। समझ में आ गया मेरे को, चलो ठीक है, लेकिन ग्रीन का भी नहीं हुआ, सो दैट मींस मेरे को समझ में आना चाहिए सीजनल है। सो लेट मी चेक कि ये ट्रेंड 2017 में भी है क्या, ऐसा तुम जाके चेक कर सकता है इमीडिएटली। ओ 2017 में ऐसा ट्रेंड नहीं है, दैट मींस there must have been something abnormal in 2016 quarter 2 and quarter 3। अगर 2017-18 के क्वार्टर्स में, अगले साल के क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 में सेल हुआ है, तो वो क्वार्टर में क्यों नहीं हुआ? तो ये ईयर के अंदर क्वार्टर आ गया, हाँ है ना, दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सो लेट्स से ये क्वार्टर्स और ईयर्स मैंने निकाल दिया, अभी यहां से क्वार्टर ईयर निकाल दिया, डेट भी निकाल देता हूं मैं, वापस अपना बेसिक डेटा पे आ गया, मैंने माइनस माइनस किया उसको, समझा क्या? अब मेरे को ऊपर फिल्टर लगाने का है, तो ईयर का फिल्टर लगाने का, मैं ईयर को कॉपी कर सकता इधर से, फिल्टर कॉलम में लेके आया, फिल्टर मतलब एट द टॉप। सो यहाँ पे टॉप में सब आ गए, आई से सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, आई वांट ओनली 2016, तो ऊपर गया मैं 2016 सिलेक्ट किया, तो नीचे सिर्फ 2016 का डेटा आएगा। देखो 2016 का डेटा का रिपोर्ट यहां पर आ गया। या आपको यहां से ईयर बाय ईयर चाहिए, देखो अब मेरे को स्ट्रक्चर अलग चाहिए, ईयर के अंदर रीजन, रीजन के अंदर प्रोडक्ट चाहिए, देता हूं तुमको, 2 मिनट रुको, ईयर ड्रैग किया, लेकिन रीजन के ऊपर रखता हूं मैं ईयर को। देखो ईयर को मैंने रीजन के ऊपर रखा, लेकिन ईयर को मैंने ऑलरेडी फिल्टर लगाया था, तो आई से सिलेक्ट ऑल, फिल्टर निकाल दिया मैंने, 2016 को
मैं बोलता हूं सबके सब ईयर दिखाओ, मेरे को सिर्फ 2016 नहीं चाहिए, सबको मैंने सिलेक्ट किया, पहले मैंने डी सिलेक्ट किया था सबको। ओके, तो देखो रिपोर्ट क्या बन गया, 2016, 2017, 2018, 2019। 18-19 को एक्सपांड नहीं करना है, एक्सपांड करना है तो आपको यहां पे जाके राइट क्लिक करो, एक्सपांड ऑब्लिक कोलैप्स, सो यू कैन से एक्सपांड। एक्सपांड नहीं हुआ ससुरा, अच्छा 2018 को जाके करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपांडेड ही था। एक्सपांड एंटायर फील्ड, तो देखो 2018, 2019 पूरा एक्सपांड हो गया, तो रिपोर्ट बन गया मेरा 2016 के अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, खतरनाक चीज समझ में आई, हाँ या ना। अब ये शुरुआत है बच्चों, बेसिक, इट इज जस्ट द बिगिनिंग। आपको मालूम नहीं अभी क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। तो ये रिपोर्ट ईयर आ गया। तो बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ पावर पीओट इज flexibility. You can structure the report the way you want, and you know the biggest advantage, if there is a change in raw data or the base data, automatically report value changes provided you do refresh. चेक करते हैं, देखो अभी 2016 में आ जाता हूं मैं, देखो रेड प्रोडक्ट है, रेड प्रोडक्ट का सेल्स हम बढ़ा देते हैं जनवरी 2016, दैट इज द फर्स्ट क्वार्टर। इधर $11 है ना, मैं $11 के जगह पे $500 डाल देता हूं, $500 जस्ट टाइप कर लेते, $500 मैंने टाइप किया। अभी ऊपर चेंज नहीं हो गया, प्योर टेबल का जो रिपोर्ट है ना उसमें चेंज नहीं हो गया अभी तक। यू चेंज द बेसिक डेटा। अब देखो मैं यहां पे आता हूं, शीट 3 में आ गया, रिपोर्ट में कौन सा प्रोडक्ट था, रेड, रेड प्रोडक्ट, रेड प्रोडक्ट कौन सा रीजन था रे, वो वेस्ट रीजन, रेड प्रोडक्ट वेस्ट रीजन, रेड प्रोडक्ट वेस्ट रीजन। ये देखो रेड वेस्ट 77 है, अभी दिख रहा है क्या तुमको, 77, गुड। वो 77 चेंज होगा, क्यों, वो पहले $11 था, $11 के जगह पे मैंने $500 डाल दिया। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी, ऑन योर कैलकुलेटर 500 माइनस 11, $489 से मेरा सेल्स बढ़ेगा। पहले 77 था, प्लस 77, 566 सेल्स होने वाला है। कैसे, अभी देखो भाई क्या करता है, मैजिक करता है, मैजिक देखने का है। आई कम, यू कैन गो टू एनी पार्ट ऑफ द पिवट टेबल, राइट क्लिक करो और रिफ्रेश का बटन दिख रहा है क्या तुमको, रिफ्रेश, यू कैन डू अ रिफ्रेश, यू कैन डू अ रिफ्रेश। रिफ्रेश में ऊपर मैं क्लिक करता हूं, मैजिक इज हियर, विंटर इज हियर, 566, वाव वाव। ये अभी तक छोटा वाला वाव है, बड़ा वाला वाव आएगा आज, और इससे खतरनाक वाला वाव अगले संडे या जब भी हम सेशन लेंगे तब आएगा। पावर पिवट इसका बाप है, पावर पिवट तो मतलब अलग। सो आई गो बैक टू द बेस डेटा अगेन, मैं उसको $11 वापस कर लेता हूं, चेंज नहीं हो गया यहां पर, रिफ्रेश क्योंकि मैंने नहीं किया है। सो अब मैं रिफ्रेश पे वापस क्लिक करता हूं, रिफ्रेश, तो ये रिपोर्ट बन गया तुम्हारा। फॉर्मेट मेरे को निकालना है, इसको कलर नहीं चाहिए, चलो हट। सो ये बेसिक आपका रिपोर्ट आ गया, ईयर बाय ईयर आ गया। आपको कैसा रिपोर्ट चाहिए मुझे बोलो, मैं रिपोर्ट करने के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। सो मेरे को ईयर बाय ईयर चाहिए, मेरे को ये रीजन नहीं चाहिए, ए रीजन हट, रीजन हट, ईयर, ईयर बाय ईयर आ गया, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आ गया। मेरे को ईयर के अंदर क्वार्टरली एनालिसिस करना है, मेरे को प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट एनालिसिस नहीं करना, ईयर के अंदर क्वार्टर चाहिए मेरे को। चल क्वार्टर, कलर निकल, कलर चला गया, अब मेरे को ईयर के अंदर क्वार्टर चाहिए। आले क्वार्टर आ गया, क्वार्टर 1 2 3 4 2016, क्वार्टर 1 2 3 4, समझ आ गया, ये वैल्यूज है। लेकिन बड़े लेवल के मैनेजमेंट पे जब जाओगे तुम, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द रॉ वैल्यू। मेरे को चाहिए 2016 में जो सेल्स हुआ था, टोटल 3447 सेल्स हुआ था। क्वार्टर 1 इतना था, क्वार्टर 2 इतना था, क्वार्टर 3 इतना था, क्वार्टर 4 इतना था। सो आई वांट परसेंटेज, आई डोंट वांट द एक्चुअल वैल्यूज। मेरे को अगर 2016 100% है तो 2016 का ब्रेकअप चाहिए। देखो क्या करता मैं, राइट क्लिक करेगा, मैं इसको राइट क्लिक किया, शो वैल्यू एज, शो वैल्यू एज, इंस्टेड ऑफ शोइंग एक्चुअल वैल्यू, डू द कैलकुलेशन, you can do a calculation, lot of calculations are there. I want percentage of total of the row, percentage of row total। अबे साला 100% आ गया, उसका ब्रेकअप दे दिया उसने। मतलब 2016 में क्वार्टर 1 was 18%, क्वार्टर 2 was 21%, क्वार्टर 3 25%, क्वार्टर 4 34%, fraction of second without applying the formula, fraction of second।
अब इसके ऊपर तुम एक बार तुमको डेटा मिल गया नहीं, वंस यू नो इट यू कैन डू अ ह्यूज एनालिसिस। सो अरे तुम बहुत खुश होना चाहिए कि भाई कैसा एनालिसिस कर सकता तुम। सो आ गया ससुरा, शो वैल्यूज एज अ परसेंटेज आ गया, तुमको परसेंटेज में नहीं चाहिए। सो कैसे मिल सकता है? राइट क्लिक, अभी देखो मैंने क्या किया था, परसेंटेज ऑफ रो टोटल, राइट क्लिक करना है, शो वैल्यू एड्स, शो वैल्यू एड्स। मैंने क्या क्लिक किया, पहले नो कैलकुलेशन था, आई क्लिक ऑन नो कैलकुलेशन। नो कैलकुलेशन मतलब क्या करेगा, वो सम लेगा। किस चीज का सम लेगा? सेल्स का। क्यों रे? मैंने उसको वैल्यू में बोला था, देखो वैल्यू में, देखो यहां पर वैल्यू के अंदर सम ऑफ सेल्स लेता। मेरा माउस को ट्रैक करते जाओ। हाँ मतलब वो मैं गणपति नहीं हूं और वो मेरा माउस नहीं है, वो कंप्यूटर का माउस है। सो ट्रैक करो उसको, सम ऑफ सेल्स था, सम ऑफ सेल्स। सो इंस्टेड ऑफ सम आई वांट अ परसेंटेज। तो मैं क्या करेगा, एक्सेल को बोलेगा, हे एक्सेल, राइट क्लिक, I want the value to be shown as percentage of row total. You can take a percentage of column if you want, depends on what you want. So percentage of row total, तो उसने percentage दिखाया, percentage दिखा दिया उसने, quarter 1 2 3 4, you can get it. अगर आपको ये बेसिक डेटा के ऊपर और कोई फील्ड क्रिएट करना, जो बेसिक 5 फील्ड्स थे, if you want additional field you can create an additional field also. I'll tell you, ये बेसिक आपका स्ट्रक्चरिंग था। तो मैंने बेसिक आपको क्या सिखाया, ये डेटा जो है उसको आप इंसाइटफुल क्रिएट कर सकते हो, यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ इंसाइट्स। अभी तो ये बेसिक इंसाइट था और आपको खेलने का इसके ऊपर, चलो खेल लेते हैं। आई डू अ राइट क्लिक, मैं बोलता हूं शो वैल्यू एज, नो कैलकुलेशन, डू नॉट अप्लाई एनी कैलकुलेशन, ठीक है। अभी बेसिक हो गया। सो बहुत सारा चीज है इसमें, डिपेंड्स ऑन द हाउ द डेटा इज प्रेजेंटेड, यू कैन डू न्यूमरस कैलकुलेशंस, यू कैन प्ले विद इट। सो ठीक है, ये ईयर आ गया, ईयर के बाद क्वार्टर बाय क्वार्टर आ गया, रीजन बाय रीजन चाहिए, रीजन बाय रीजन आता है, कैसे भी आएगा, तुम बोलो मुझे सिर्फ ईयर। देखो अब इस रिपोर्ट को तुमको अच्छे से प्रेजेंट करने का है, तो यहां पर एक अलग अलग ऑप्शन होते हैं, राइट क्लिक करने का, या हाँ, लेट मी शो यू एट द टॉप। If you see there is a ribbon, the moment you go to the pivot table, there is एक ribbon आता है यहाँ पे राइट साइड, देखो ना, pivot table analyze and pivot table design. So ये आप उसके बाहर गए तो चला जाता है रिबन, देखो the moment I click outside that report, वो रिबन चला गया ऊपर का, रिबन ऊपर के जो मेन्यूज रहते हैं ना, उसको रिबन बोलते हैं एक्सेल में। So I can come back here. So I can come back here simply, ठीक है, रिपोर्ट के अंदर वापस रिबन आ गया। आई गो टू एट द टॉप पिवोट टेबल एनालाइज, आई गो टू पिवोट टेबल एनालाइज। सो ये एनालाइज में बेसिक चीजें होती है। सो आपका पिवोट टेबल का जो सोर्स डेटा है वो यहां से आप चेंज कर सकते हो, और यू कैन डू अ रिफ्रेश आउट हियर। सो रिफ्रेश कर सकते हो। आपको अगर और कैलकुलेशंस करना है इस डेटा के ऊपर, यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फील्ड, सो यू कैन गो टू द फील्ड, यू कैन इंसर्ट अ कैलकुलेटेड फील्ड। तो आप ये जो फील्ड्स ऑलरेडी है उसका आप फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला मतलब लेट्स से मेरे को रेट फाइंड करना है, रेट वहां पे नहीं था, बेसिक डेटा में रेट था क्या? नहीं था, तो मैं बोलता हूं रेट, फॉर्मूला, हाउ डू यू कैलकुलेट रेट? सेल्स अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो मैं क्या करेगा, फॉर्मूला इज इक्वल टू सेल्स, इंसर्ट द फील्ड, डिवाइडेड बाय एक्सेल में ऐसा होता है, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, इंसर्ट द फील्ड। मैं बोलता हूं ओके, तो उसने रेट करके फील्ड ऐड कर दिया। देखो, देखा क्या तुमने, रेट 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 रेट, चोको है। अब मेरे को रिपोर्ट चाहिए, अभी देखो मैं नया रिपोर्ट क्रिएट करेगा तुम्हारे लिए, मेरे को रिपोर्ट चाहिए, लुक एट दिस। और रेट नहीं चाहिए मुझे, हाँ, जस्ट ऑब्जर्व, आई विल गो बैक टू द बेसिक। अब रेट का मैंने फील्ड क्रिएट किया, वॉज देयर अ रेट फील्ड इन द बेसिक डेटा? पब्लिक, वॉज देयर अ रेट फील्ड इन द बेसिक डेटा? नो। अब मैंने वो फील्ड क्रिएट किया, कैसे फील्ड क्रिएट किया समझा ना तुमको? हाँ, अब देखो मैं बेसिक रिपोर्ट पे चला गया, आई वांट रीजन, मेरे को चेक करना है कि रीजन बाय रीजन सेलिंग प्राइस पे कोई इंपैक्ट है क्या। तो मैंने रीजन सिलेक्ट किया, रीजन को रो में डाल दिया मैंने, रीजन को रो में डाल दिया मैंने,
रीजन के अंदर मेरे को क्वांटिटी रेट चाहिए, एवरेज रेट चाहिए, मेरे को एवरेज रेट चाहिए प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट जो है मेरा कलर मैंने कॉलम में डाल दिया। अब रेट का टोटल नहीं चाहिए मेरे को, रेट का एवरेज रेट चाहिए प्रोडक्ट का। सो मैं रेट पिकअप किया और रेट को मैंने वैल्यू में डाल दिया। उस साला ससुरा एक्सेल को दिमाग नहीं, उसने दिमाग है मतलब, उसने क्या किया, सम ले लिया रेट का। मेरे को टोटल नहीं चाहिए रेट का एवरेज चाहिए। तो मैं बोलता ये नहीं, वैल्यू फील्ड सेटिंग, मैं उसको बोलता हूं ए तू एवरेज ले, एवरेज ले, मेरे को चेक करना है एवरेज रेट में क्या फर्क है। तो मैंने एवरेज ले लिया, तो उसने एवरेज कर लिया। एक्चुअली रेट सब जगह पे सेम है, दैट्स व्हाई वो उसको ये नहीं हुआ। सो रेट, तो ऑन एन एवरेज इन ईस्ट रीजन योर प्रोडक्ट हैज सोल्ड एट 12.18, बट नॉर्थ में इट इज सेलिंग एट 12.35, south it is 12.2021 and west it is 12.3. so you can do analysis of your selling price region by region. same product है, यही ब्लू प्रोडक्ट ईस्ट रीजन में ये प्राइस को बिक रहा है ऑन एन एवरेज, नॉर्थ में अलग रेट पे बिक रहा है। सो दिस रेट फील्ड वाज नॉट देयर, रेट फील्ड वाज नॉट देयर इन बेसिक डेटा। देखो बेसिक डेटा में रेट है ही नहीं। तुम देखोगे, देखो साउथ में ब्लू बिक रहा है $12 को, 96/8, $12 को साउथ में ब्लू बिक रहा है। साउथ में ब्लू देखो 12.21 एवरेज है ना वो। अब मेरे को ईयर बाय ईयर चाहिए, तो ले भाई ईयर बाय ईयर ले चल। तो मेरे को समझ में गया, देखो ओ खतरनाक साउथ के अंदर ये ब्लू प्रोडक्ट 2016 में 12, लेकिन 2018 में मैंने 12.06 किया, 2019 में मैंने प्राइस $13 किया। ब्लू का नॉर्थ में प्राइस 12 ही था, 12.45 किया। यहां पर एरर आया DIV डिवाइड बाय 0, मतलब उस टाइम पे सेल हुआ ही नहीं कुछ। सिल्वर का जो प्रोडक्ट है 2016 में DIV बाय 0 मतलब डिवीजन करके उसको कुछ मिला ही नहीं एक्सेल को। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं किया होगा मैंने उस रीजन में। दैट प्रोडक्ट माइट नॉट हैव बीन देयर इन दैट रीजन, और दैट प्रोडक्ट माइट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 2018। सो ईस्ट रीजन वाइज मिल गया मेरे को, रीजन वाइज प्रोडक्ट वाइज मिल गया मेरे को प्राइस। तो आई कुड इंसर्ट अ न्यू फील्ड, कहां से कैलकुलेट किया बच्चों? ये रिबन ऊपर का रिबन, पिवोट टेबल एनालाइज डिजाइन, पिवोट टेबल एनालाइज के अंदर गया, उधर फील्ड्स थे, फील्ड के अंदर मैंने कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट किया। आई गो टू कैलकुलेटेड फील्ड, उधर मैंने कैलकुलेट किया, रेट करके फील्ड जो था वो मैंने क्रिएट किया। कैलकुलेटेड फील्ड इज व्हाट आई क्रिएटेड। कुछ समझा क्या तुमको? आई कैन डिलीट द फील्ड ऑल्सो, रेट को मैं सिलेक्ट कर सकता है, आई कैन मॉडिफाई द फॉर्मूला, आई कैन डिलीट, मैं बोलता डिलीट, चल जा, मेरे को नहीं चाहिए अभी, तू काम हो गया तेरा, ओके गया वो, डिलीट हो गया। तो यू कैन जस्ट प्ले विद द रिपोर्ट। यू नो व्हाट इज एडवांटेज? योर बेस डेटा रिमेन्स इंटैक्ट, उसको कुछ नहीं होता है। तो मतलब तुम डेटा के ऊपर खेल लिया, बेस डेटा को तुम वैसा का वैसा इंटैक्ट रख सकता है, राइट? अभी ये बेसिक है, अभी मेरे को चार्ट के फॉर्म में भी चाहिए। हाँ ये बेसिक था, अरे चार्ट नहीं, थोड़ा और एक्सप्लेन करूं क्या? रुकोगे क्या तुम लोग? सो ये प्योर टेबल एनालाइज है, इसमें तुम चार्ट इंसर्ट कर सकता है, उसके तुम नए फील्ड्स ऐड कर सकता है, उसका डिजाइन तुमको कलरफुल चाहिए तो डिजाइन में जा सकता है, तुम्हें ऐसे कलर वाला रिपोर्ट आ सकता है। एक कलरफुल करते हैं, वी हैव कलर्स, ये प्रेस्टीज पॉइंट में बहुत जरा होता है कलर कलर कलर, तो तुमको कलर चाहिए ना, कलर दिखाता हूं तुमको, ले लो। देखो हमारे पास क्या है, रीजन है, ये रीजन मैंने लाया रो के अंदर, रीजन लाया रो के अंदर, कलर डाला मैंने कॉलम के अंदर, सेल्स डाला मैंने यहां पर। लेकिन ये रिपोर्ट ऐसा बेसिक दिख रहा है, मेरे को ऐसा फैंसी वाला दिखने वाला रिपोर्ट चाहिए है, फैंसी है ओ यो सो यो दिखेगा क्या? हाँ तुम जाओ उधर, यही रिपोर्ट को तुमको फैंसी करना है ना, इधर देखो, इधर इतने सारे स्टाइल्स है, उसको कौन से स्टाइल में चाहिए, ये ऐसे थोड़ा और फैंसी कर लेते हैं, थोड़ा जरा 3D वाला भी रहता है नीचे, मीडियम लाइट कितना चाहिए तुमको, गॉडी डिजाइन चाहिए, देखो गॉडी डिजाइन हो गया, ऐसा ही ची लगता है, मेरे को नहीं पसंद है। सो एक ऐसे सिंपल रिपोर्ट चाहिए तुमको, ऐसा फैंसी वाला, बेसिक चाहिए, बेसिक आ गया। तुमको ये ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए, तुम ग्रिड लाइंस निकाल सकते हो तो और अच्छा दिखता है। ये ऊपर गया ना सर्च में, ये ग्रिड लाइंस पे शो ग्रिड लाइंस निकाल देने का, ग्रिड लाइंस तो अच्छा दिखता है, वो पीछे के जो ग्रिड स्ट्रक्चर थे ना वो चले गए। तो तुमको जैसा चाहिए वैसा डिजाइन आएगा,
और देखो ये देखो डिजाइन आ गया, ये देखो ये चाहिए ऐसा बीजेपी कलर, ये ले बीजेपी। चलो नहीं हमको कांग्रेस टाइप वाला कलर चाहिए, रामदेव अठावले चाहिए, अठावले आ गए। तो जो चाहिए वो चाहिए, तुमको जैसा चाहिए वैसा रिपोर्ट आएगा। तुम तुम्हारा खुद का स्टाइल क्रिएट कर सकता है, कुछ भी करो तुम, बेसिक डिजाइन आएगा तुमको ऐसा, वट एवर यू वॉन्ट, द वे यू वॉन्ट। तो मैं बेसिक पे आ गया वापस, ठीक है। तो यू कैन चूज द वे यू वांट रिपोर्ट। तो ये तुम क्रिएट कर सकता है। तुमको ऐसा रिपोर्ट का लेआउट चाहिए, तुमको कॉम्पैक्ट फॉर्म में चाहिए, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म ही था। यू कैन हैव आउटलाइन फॉर्म, तो ये आउटलाइन आ गया थोड़ा सा ऐसा ब्लू, देखो इधर थोड़ा आउटलाइन फॉर्म में आ गया। यू कैन जस्ट हैव अ मल्टीपल फॉर्मेट्स हियर, टैबुलर फॉर्म, इसको ज्यादा, हाँ एक फील्ड ऐड करने दो मेरे को, सो ईयर्स मेरे को ऐड करने दो, तो तुमको समझेगा ये रिपोर्ट्स कैसे चेंज होते हैं। सो आई जस्ट चेंज ईयर्स हियर, देखो ईस्ट के अंदर ईयर्स यहां पर आ गए, मेरे को कॉम्पैक्ट फॉर्म में चाहिए तो ईयर अंदर आ गया, ईस्ट के अंदर ईयर आ गए, एक कॉलम बच गया। तुमको थोड़ा एक्सपांडेड फॉर्म में चाहिए, देखो आउटलाइन फॉर्म ईस्ट, अगले कॉलम में ये इनर कॉलम आउटर कॉलम जो करता है ना तुम बैलेंस शीट के लिए, वैसा इनर कॉलम आउटर कॉलम। अरे तुम फ्लेक्सिबिलिटी बोलो मुझे, जो चाहिए वो कर सकती तुम। नॉर्थ आ गया, ये तुम रिपोर्ट का लेआउट चेंज कर सकते हो। शो इन अ टेबुलर फॉर्म, तो टेबल आएगा टोटल टोटल टोटल, टोटल नहीं चाहिए तुमको तो यू कैन से डोंट शो द टोटल, सब टोटल द रीजन। मैं बोलता नहीं करो, निकाल दिया उसने सब टोटल, ईयर बाय ईयर आ गया, सब टोटल निकाल दिया मैंने राइट क्लिक करके, सब टोटल ईयर्स। अभी राइट नाउ देयर इज सब टोटल है, तो आप सब टोटल रीजन का ऑप्शन था, रीजन के ऊपर क्लिक करके सब टोटल रीजन आ गया, रीजन का सब टोटल। ईयर का सब टोटल नहीं आ सकता क्योंकि एक ही है, मतलब देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग अ सब टोटल ऑफ द ईयर, इट कांट, एक ही है। सो द वे यू वांट यू कैन स्ट्रक्चर द रिपोर्ट बॉस, जैसा चाहिए वैसा रिपोर्ट तुम बना सकता है। ग्रैंड टोटल चाहिए, ग्रैंड टोटल लो, सब टोटल चाहिए, सब टोटल ले लो। यू कैन टेक अ सब टोटल्स, यू कैन टेक अ ग्रैंड टोटल्स ऑन रोज ओनली, ऑन कॉलम्स ओनली। तो कैसे चाहिए वैसा आप कर सकते हो, प्योर टेबल को एनालाइज कर सकते हो। चलो लेट मी गो बैक टू द बेसिक अगेन, जस्ट अ सेकेंड। अभी मैं तुमको और खतरनाक चीज बताएगा। हैव पेशेंस, पेशेंस बच्चों। वापस गया मैं बेसिक पे, बेसिक रिपोर्ट आ गया, कोई फील्ड मैंने सिलेक्ट नहीं किया। तो ये डिजाइन कर सकते हो या उसको और थोड़ा एनालाइज कर सकते हो। अभी एनालाइज में थोड़ा और चीज सिखाता मैं तुमको। लेट्स से मैंने वापस ले लिया अपना रीजन, रीजन ले लिया मैंने, और मैंने प्रोडक्ट का कलर ले लिया, और मैंने इधर सेल्स का टोटल ले लिया वैल्यूज में। तो मेरे को बेसिक रिपोर्ट आ गया, इसका टोटल नहीं आ रहा है बिकॉज मैंने वो उसको बोला था ना सब टोटल मत ले, तो उसको बोला था मैंने ग्रैंड टोटल मत ले या कुछ, तो आई हैड एक्सप्लेन्ड इट टू दैट ग्रैंड टोटल्स। एक सेकंड, टोटल मैंने बंद किया था, सब टोटल द रीजन, जस्ट अ सेकंड, उसका टोटल भी आना चाहिए, आएगा टोटल, ग्रैंड टोटल ऑन रोज एज वेल एज कॉलम्स, ऑफ कर दिया मैंने, जस्ट अ सेकंड लेट मी मेक इट ऑन। हाँ, सो मैंने ग्रैंड टोटल ऑफ किया था, ऑन फॉर रोज एंड कॉलम्स, मेरे को ऑन, इट वाज ऑफ, मैंने सेलेक्ट किया था ना। तो ग्रैंड टोटल तुमको कैसा चाहिए, रो का भी चाहिए कॉलम का भी चाहिए, तो मैंने बोला हाँ मेरे को दोनों चाहिए। अब आएगा मजा, देखो 1 घंटा हो गया, देखो पॉपुलेशन कम हो रहा है, देखा क्या तुमने, कुछ पैरासाइट्स रहते हैं वो चले जा रहे हैं धीरे धीरे। सो खतरनाक, अभी देखो धीरे धीरे भैया, अभी तुमको खतरनाक चीज आएगा। आई एम गोइंग टू पुट अ स्लाइसर, यू वांट टू एनालाइज अ डेटा, यू वांट टू एनालाइज अ डेटा बाय विजुअल ग्राफिक्स, तो विजुअल ग्राफिक्स लाएगा मैं अभी, मैं आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ विजुअल ग्राफिक्स इन फ्रंट ऑफ यू। आर यू रेडी, आर यू रेडी पब्लिक? सो देख लेना, ये मैं एनालाइज में गया, पाइवोट टेबल एनालाइज, पाइवोट टेबल एनालाइज के अंदर चला गया मैं, उसके अंदर देखो एक स्लाइसर चीज है, इंसर्ट स्लाइसर, स्लाइसर पहले मैं स्लाइसर डाल दिया। सो कौन से फील्ड का स्लाइसर चाहिए, स्लाइसर इज अ विजुअल एनालिसिस ऑफ द डेटा। सो मेरे को रीजन एंड प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट कोड मतलब अपना प्रोडक्ट का कलर है अपना, उसके हिसाब से मेरे को स्लाइसर चाहिए, और ईयर के हिसाब से एक स्लाइसर चाहिए। तो मैं ओके किया, अभी स्लाइसर देखो आने वाला है तुम्हारे साथ, चाहिए क्या नहीं चाहिए स्लाइसर? आई क्लिक ऑन ओके, देखो स्लाइसर आ गया। अब बोलेगे क्या हो गया सर, 2 मिनट रुको, क्या होगा मैं दिखाता तुमको। ईयर,
रीजन और कलर। एक सेकंड थोड़ा सा मेरे को ऐसा करने दो, इसको जगह करने दो, मेरे पास कंप्यूटर का स्क्रीन कम है ना, जगह कम है ना थोड़ा। सो ईयर रीजन कलर, अब ये मैंने अरे साला थोड़ा सा मैं ऐसे अंदर डालता इसको, लेकिन मेरे को एक फील्ड चाहिए उसका वापस। जस्ट अ सेकंड, लेट मी एडजस्ट द डेटा ऑन माय स्क्रीन सो दैट आई कैन आल्सो सी बिफोर आई टीच यू। दैट्स व्हाई अभी समझ में आया तुमको बड़े बड़े स्क्रीन क्यों चलते हैं, एप्पल के ऐसे बड़े बड़े मैक लेके लोग बैठते हैं एनालिसिस के लिए, खतरनाक। कुछ लोग मैंने ऐसे देखा सिर्फ डिजाइन के लिए लेके रखते हैं, अकल तो कुछ होती नहीं है, सिर्फ लेके बैठते हैं। कुछ लोग बड़ा स्क्रीन है तो तुम्हारे खेल सकता है उसके ऊपर, प्रोजेक्टर लगा के ऐसा मास पाई की डेटा एनालिसिस करने का। सो देखो अभी स्लाइसर क्या होने वाला है, स्लाइसर मालूम है तुमको? तुमको ग्रीन प्रोडक्ट का एनालिसिस चाहिए, सिर्फ तुमको क्या चाहिए, सिर्फ ग्रीन का एनालिसिस चाहिए। अभी मैं ग्रीन के ऊपर फोकस कर रहा है, ग्रीन का मैनेजर मेरे सामने बैठा है, मेरे को उसको लेने का है मतलब उसको झाड़ने का है या उसका अप्रेस करने का है। मैं सिर्फ ग्रीन के ऊपर क्लिक करेगा, मैजिक होएगा, मैजिक। आई क्लिक ऑन ग्रीन, देखो सब कुछ हिल गया, बाकी सब प्रोडक्ट चले गए, ग्रीन का ही डेटा रह गया मेरे सामने बस। आई जस्ट गॉट द डेटा ऑफ द ग्रीन, आई डोंट हैव एनी अदर डेटा। आई वांट टू पुट अ रेड आल्सो, तो रेड पे आ गया। आपको दोनों सिलेक्ट करना है एक साथ, कंट्रोल का की दबाओ, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, ग्रीन रेड आना, आ गया ग्रीन एंड रेड। कंट्रोल से सिलेक्ट कर सकते हो जितना चाहिए उतना, कंट्रोल एंड माउस दोनों यूज करना पड़ता है। खतरनाक ना? तुमको सब कुछ चाहिए वापस, क्लिक करो, फिल्टर रिमूव करो, आई रिमूव द फिल्टर। सो मल्टी सिलेक्ट कर सकते हो, मल्टी सिलेक्ट ऑन ऑफ आपको करना है। यहां पर मैंने फिल्टर रिमूव कर दिया, सब कुछ डेटा आ गया। मेरे को नॉर्थ का डेटा चाहिए, नॉर्थ, ये ले नॉर्थ। मेरे को नॉर्थ चाहिए 2017 का सिर्फ, या मेरे को सबके सब रीजन चाहिए 2017 के। 2017 का डेटा आ गया सिर्फ, 2017 सब रीजन आ गए। 2017 का साउथ एंड नॉर्थ चाहिए मेरे को, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ 2017। स्लाइसर सिलेक्टेड है, जो सिलेक्टेड है उसको हाईलाइट किया जाता है। सिल्वर को मैंने अनसिलेक्ट किया था, सिल्वर को वापस सिलेक्ट कर लेता हूं। हाँ, सिल्वर था ही नहीं उस साल में, दैट्स व्हाई दैट वाज ग्रे। तो मल्टी सिलेक्ट ऑन किया मैंने, ब्लू ग्रीन रेड। You can keep a multi select on or you can use a control button. ये जो है ना यहाँ पर, that allows you to do the multiple selections. खतरनाक ना? अरे चोको अच्छे। ये स्लाइसर आ गया, तुमको टाइम डेटा डेट तुम्हारे पास है तो ये स्लाइसर्स को, लेट मी रिमूव ऑल द स्लाइसर्स। ये स्लाइसर्स आ गए। सो स्लाइसर ने क्या किया, तुमको विजुअली तुम्हारे सामने डैशबोर्ड रखा, कीज रखा, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा, ऑटोमेटिकली तुम्हारा रिपोर्ट चेंज होता है यार। इमेजिन करो तुम मीटिंग के अंदर बैठा है, तुमको प्रेजेंटेशन देना है या तुमको एनालिसिस करना है। व्हेन यू गो इन रियल लाइफ, बच्चों तुम्हारी लेने वाला बहुत लोग रहेगा। इफ यू वांट टू मूव अप इन द ऑर्गेनाइजेशन, यू नीड टू शो सम एनालिटिकल स्किल्स, यू नीड टू इक्विप योरसेल्फ। तो आप ऐसा फ्लैश ऑफ द सेकंड पे डेटा, ये लोगों को पता नहीं होता है। इन केस आई डोंट नो वेदर एनी पेरेंट इज वाचिंग आउट हियर, एंड इफ योर पेरेंट्स आर वर्किंग इन द एमएनसी, प्लीज आस्क देम ये चीजों का कितना यूज होता है मार्केट। मैं आपको सिर्फ अभी बेसिक बोल रहा हूं, आई एम नॉट टेकन टू द ग्राफ लेवल एट ऑल। वंस आई टेक यू टू द ग्राफ्स एंड अदर थिंग्स, यू विल गो मैड, यू लिटरली गो मैड। सो ऑब्जर्व नाउ, ये हो गया, स्लाइसर समझ गया बच्चों? अब आई एम गिविंग यू ब्रीफ ऑफ एवरीथिंग, आई एम नॉट टेलिंग यू एवरीथिंग ऑफ एवरीथिंग, इट्स नॉट पॉसिबल इन अ मैटर ऑफ 1 or 2 hours। सो ये स्लाइसर्स को निकाल देता हूं, डिलीट करता हूं, सिलेक्ट करने का, डिलीट करने का स्लाइसर को। Slicer is just a filter. Slicer is like a filter. You can filter the data. अब मेरे को ग्राफ चाहिए। देखो अभी यही चीज का मेरे को ग्राफ चाहिए। ईस्ट रीजन का ब्लू ग्रीन रेड सिल्वर, आई वांट अ ग्राफ टू बी जनरेटेड। यू आर गोइंग टू गो मैड, यू आर जस्ट गोइंग टू गो मैड, मतलब मैड। देखो अभी मैं क्या किया, पिवोट टेबल एनालाइज में गया मैं, आई गो टू पिवोट चार्ट। पिवोट चार्ट, ये टेबल के ऊपर चार्ट बना के दिखाएगा मैं तुमको। चार्ट, पिवोट चार्ट। तो आपको कौन से टाइप का चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, कॉलम चार्ट चाहिए? तो कॉलम चार्ट चाहिए तो उसमें क्या आएगा, ईस्ट। ये देखो यहाँ पे ईस्ट, और हर एक प्रोडक्ट का मेरे को चीज समझ में आएगा। सो आपको प्रोडक्ट के अंदर के चाहिए, जैसे चाहिए वैसे आएगा। लेट्स मी सिलेक्ट अ कॉलम फर्स्ट। ये कॉलम सिंपल कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो तुम, ऐसे ईटी में तुमने देखोगे तो ईस्ट में कौन सा प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन कितना हो रहा है, याद है? याद है? ये ऐसे तुमने फोटो में देखोगे ना तुमने कभी कभी पेपर में। तो मैं सिलेक्ट किया उसको, ये डाल दिया मैंने, ये बेसिक डाल दिया मैंने पहले।
तो ये बहुत बेसिक है। ये बेसिकली क्या बोल रहा है मेरे को, देखो ईस्ट रीजन में 4 प्रोडक्ट है, ऐसा ऐसा इनका ग्राफ है। अब मेरे को ईयर बाय ईयर चाहिए, ईयर बाय ईयर चाहिए, कुछ नहीं, ईयर को उठाओ, ईयर को डाल दो इधर रीजन के अंदर, तो तुमको ईयर बाय ईयर मिल गया। अबे साला, ईयर बाय ईयर उसने ऑटोमेटिकली ग्राफ भी चेंज कर लिया। तो तुम इधर सिलेक्ट कर सकते हो, पर्टिकुलर ईयर का चाहिए, पर्टिकुलर रीजन का ग्राफ चाहिए तुमको, ठीक है। सिर्फ वेस्ट का ग्राफ चाहिए, तुम इधर वेस्ट सिलेक्ट करो, या स्लाइसर डाल के रखो। तुम स्लाइसर डाले तो स्लाइसर से आ जाएगा वेस्ट। ओके, चार्ट बन गया सिर्फ वेस्ट का। अमेंड हो रहा था चार्ट, अमेंड हो गया, तो वेस्ट का चार्ट बन गया। वेस्ट रीजन 2016, 17, 18, 19 क्या हुआ, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट क्या हुआ। अब ये 4 प्रोडक्ट के मैंने 4 कॉलम किए, लेकिन तुमको एक ही ऐसा खंबा चाहिए, उसमें 4 प्रोडक्ट चाहिए, तो ठीक है, चेंज चार्ट टाइप। तो मैं क्या किया, ऊपर गया, पिवोट टेबल चार्ट एनालाइज, चेंज चार्ट टाइप रहता है उसके अंदर, चेंज चार्ट टाइप, डिजाइन के अंदर गया, डिजाइन के अंदर है चेंज चार्ट टाइप, तो उसमें देखो ये वाला चार्ट है, ये वाला ऐसा सिलेक्ट करने का। तुम ओके सिलेक्ट किया मैंने, अबे साला क्या किया ससुरा, वेस्ट रीजन का 2016, 17, 18, तो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का उसने कलर दे दिया एक। तुमको ऐसा नहीं पसंद, तुमको पाई चार्ट चाहिए, चेंज चार्ट टाइप, पाई चार्ट ले लो तुम। 3D चार्ट चाहिए तो 3D चार्ट आएगा, पाई चार्ट, ओ पाई चार्ट खतरनाक। सो इसने क्या किया, मेरे को पाई चार्ट में, हाँ पाई चार्ट में सिर्फ एक प्रोडक्ट का आएगा, ब्लू प्रोडक्ट, तो इसने अभी ब्लू प्रोडक्ट रखा, तो स्लाइसर डाल दो तुम प्रोडक्ट का, इंसर्ट स्लाइसर, पिवोट टेबल एनालाइज में गया, इंसर्ट स्लाइसर, मेरे को चाहिए प्रोडक्ट स्लाइसर, तो एक एक प्रोडक्ट का चार्ट जब चाहिए तब स्क्रीन पे आते रहेगा। इमेजिन करो तुम ऐसा प्रोजेक्टर को कनेक्टेड है, तुमको ग्रीन का चाहिए, ग्रीन आ गया, ग्रीन चोको है, समझ रहा है क्या तुमको, क्या किया मैंने, स्लाइसर ग्रीन सिलेक्ट किया, ग्रीन आ गया, उधर रेड सिलेक्ट किया। आप बोलते हो सर क्या सर तुमने रेड सिलेक्ट किया, उधर बीजेपी दिख रहा है सर। अरे वो प्रोडक्ट का कलर है, रेड प्रोडक्ट का नाम है, उधर रेड मतलब वो रेड में आना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं, रेड इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, एक्चुअल को क्या मालूम रेड लिखा है उधर, ये आपका प्रोडक्ट का कलर है ना। और बीजेपी इज ऑल ओवर ना आजकल, सुचरी सर बोलते ही है। सो खतरनाक एनालिसिस हो रहा है तुम्हारा। तुम ये वेस्ट रीजन का है, सिर्फ तुमको रीजन का स्लाइसर चाहिए, रीजन का स्लाइसर डाल दो भाई। मैं इंसर्ट में गया वापस, एक सेकंड बाहर जाने दो मेरे को, पिवोट को सिलेक्ट करने दो, अभी सिर्फ वेस्ट का डेटा है ना, पिवोट टेबल एनालाइज, इंसर्ट स्लाइसर, रीजन, चल आजा रीजन का स्लाइसर। राइट नाउ इट इज ओनली वेस्ट विच इज सिलेक्टेड, आई कीप मल्टी सिलेक्ट ऑन, तो आई कीप ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो सबके सब रीजन आ गए, रेड प्रोडक्ट का सेल्स आ गया, ईयर बाय ईयर, ये देखो ईयर बाय ईयर ये सेल्स है आपको उसके अंदर। चलो ईयर जरा थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं ईयर को निकाल देता हूं, लेट मी गेट बैक टू द पिवोट टेबल लिस्ट। ये स्क्रीन अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ईयर को निकाल दिया मैंने। तुम्हारा दिमाग चल रहा है कि नहीं मालूम नहीं मुझे, दिमाग चल रहा है क्या रे पब्लिक, हैंग नहीं हुआ ना दिमाग, हैंग हो गया होगा नहीं तो दिमाग चलना चाहिए ये अरे ऐसा मैं तुमको बोलता ना, मैं सुबह से बहुत ऐसे दिन रहते ना। टुडे I ate at 2 o'clock. Since morning I was analyzing some different data, not regarding एक तो सात्विक का डेटा एनालाइज कर रहे थे। रियल डेटा पे जब तुम खेलते हो ना तो मतलब अलग ही लेवल। I took a bath at around 4 p.m. That's why I changed the lecture to 6 p.m. Because सुबह से मैं सिर्फ एनालाइज कर रहा था, सिर्फ एनालाइज ही कर रहा था अबाउट वट एवर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स दैट वी आर सेलिंग। सो 2 बजे तक मैं एनालाइज करते बैठा सुबह से। 4 बजे किधर तो चालू किया, नहाना चालू किया 4 बजे, इसलिए 4 बजे के नहाना, थोड़ा बहुत खाना खा के 6 बजे बोला मैं होएगा ही नहीं लेक्चर, इसलिए 7 बजे कर दिया। तो वंस यू स्टार्ट एनालाइजिंग डेटा, इतने सारे ट्रेंड मिलते तुमको, इतने सारे ट्रेंड मिलते, तुम पागल हो जाएगा, यू जस्ट गो मैड। सो सर पाई चार्ट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, अरे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तेरे को दिमाग चाहिए, दिमाग, पाई चार्ट समझता नहीं तेरे को। सो इट्स बेसिक, तुम करो ग्रीन कलर, ब्लू कलर और सिल्वर कलर, उसका डेटा गया पाई चार्ट के अंदर। अब सुनो आप और खतरनाक चीज, तो हम इसको एक्सपांड कर सकते, तुमने अगर ईयर डाला ना तुम पाई चार्ट को भी एक्सपांड कर सकते हैं ऐसे। देखो मैं सबको सिलेक्ट कर रहा, फिल्टर निकाल देता, ये सब आगे। अब देखो ससुरा, पाई चार्ट की जगह पे मैं उसको पाई चार्ट के जगह पे मैं उसको कॉलम चार्ट, यू कैन टेक अ 3D चार्ट्स आल्सो, पिवोट टेबल एनालाइज, यू कैन गो टू द डिजाइन, डिजाइन के सॉरी चार्ट सिलेक्ट करने दो, हाँ चार्ट के अंदर डिजाइन,
change chart type. You can have a 3D charts. यहाँ पे 3D charts आते हैं कुछ कुछ. Scatter diagram तो यहाँ पे कोई काम का नहीं है. Bar diagram में 3D वाला आता है. Columns में 3D. हाँ ये देखो 3D. ऐसा 3D दिखता है, खतरनाक. So you can just go mad with the data way you want to present. इसमें और सर्कल चार्ट रहते हैं. तुमको एक खतरनाक टाइप दिखाता चार्ट का. ऐसा सर्कल वाला चार्ट रहता है. एक सेकंड. सनबर्स्ट इसको एक सेकंड. Funnel charts and other things. अरे तुम just a second. Let me change the data to north south आ गया ना ये, और ये प्रोडक्ट के रीजन्स आ गए. Look at this. It just coming up your way. Let me change the chart type. Funnel is not possible here. Let me just bring up the इस डेटा के ऊपर सर्कल के अंदर आता है. Just a second. Let me pull it off. हाँ, डोनट. हाँ ये इसको ये एक्सेल ने खतरनाक नया चालू किया डोनट. ये देखो अभी तो तुमको समझ रहा है क्या क्या किया है मैंने. ये रीजन है, रीजन के अंदर रीजन का कलर सही है, कलर कोड रीजन के है, और इसके अंदर जो है ना वो क्या कर रहा है, तुमको एक एक प्रोडक्ट का डेटा दे रहा है. लेट्स से आई जस्ट सिलेक्ट अ ब्लू कलर. अब देखो ये ब्लू प्रोडक्ट का रीजन बाय रीजन सेल्स आ गया. सिर्फ खतरनाक. ब्लू प्रोडक्ट इट इज ओनली, and this blue product is put up into the other part. Blue product is put up into other part, right? तो ब्लू का क्या किया उसने, ईस्ट रीजन इतना है. अगर आपको इसमें परसेंटेज चाहिए तो देखो मैं परसेंटेज भी लाके टाइप करेगा. I go to chart element, add chart element, left side, add chart element, data label, I say show. मेरे को परसेंटेज में नहीं लिया साले ने, सरसोड़ ने. शो वैल्यू एज परसेंटेज. जस्ट अ सेकंड, लेट मी शो द वैल्यू एज परसेंटेज. लेट मी क्लिक ऑन शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल. देखो ओ चार्ट, डोनट चार्ट खतरनाक. क्या बोला उसने, ब्लू प्रोडक्ट 15% इज सोल्ड इन द ईस्ट रीजन, 31% इज नॉर्थ रीजन, 22% इज साउथ रीजन एंड वेस्ट रीजन. प्रोडक्ट ब्लू नहीं चाहिए तुमको, प्रोडक्ट अलग चाहिए, स्लाइसर पे जाओ, ग्रीन प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज होगा. अरे चेंज हो जाना. नहीं क्लिक नहीं किया मैंने, सॉरी. चेंज. अरे चेंज. अच्छा उसने चेंज किया ग्रीन का, लेकिन उसने चार्ट एलिमेंट वापस ऐड करना पड़ रहा है ससुरे को. ऐड चार्ट एलिमेंट, डेटा लेबल्स, शो. डेटा लेवल वो गायब कर दिया था उसने. 18% आ गया, रेड को गया, रेड का ब्रेकअप आ गया. इट इज चेंजिंग द डेटा लेबल. आई नीड टू ऐड दैट पर्टिकुलर डेटा लेबल कॉन्सेप्ट. एक्सेल आ गया, तुमको डेटा लेबल आ गया. खतरनाक. द वे यू वांट. अब इसे ईयर ऐड करो इसमें. यू वांट टू ऐड अ ईयर, लुक एट द ईयर बाय ईयर आएगा. तो जैसे आपको डेटा चाहिए वैसे डेटा आएगा. अब देखो ईयर आ गया ना, देखो जूम करके देखो. अभी ये ईयर आ गया, रीजन्स आ गए. सो यू कैन जस्ट ईयर मेरे को ऊपर डालने दो फिल्टर के अंदर. आई पुट द ईयर अंडर फिल्टर. तो देखो अब क्या कर सकते हैं मालूम है, इधर ईयर मेरे को चार्ट के अंदर भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन है. तो मूवमेंट आई सिलेक्ट ईयर, उसी ईयर का मेरे को डोनट बना के देगा. देखो डोनट इज मेड ऑफ ओनली दैट ईयर. सो आई कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेसिक डेटा. बहुत हो गया, 1.25 घंटे बात कर लिया. लोगों का पेशेंस खत्म हो रहा होगा. बच्चा बोलता है सर आई हैव वन सजेशन, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम कैन यू प्लीज शेयर द डेटा विद सर. अरे तुमको डेटा अगर पहले शेयर किया ना तो लेक्चर होगा ही नहीं. प्रतीक सोमन, मैं टीचर है, मेरे को मालूम है कैसे सिखाना चाहिए. इफ आई शेयर द डेटा एंड आई से स्कूल के जैसा तुम्हारा हो गया क्या देखो, तुम्हारा हो गया क्या देखो, हर एक बच्चे का अलग अलग होगा. सो इट इज बेटर दैट आई विल एक्सप्लेन इट फर्स्ट एंड देन यू ट्राई इट ऑन योर ओन, ऑन इट्स ओन. इट इज ऑलवेज बेटर. प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज ऑलवेज बेटर. अभी मैंने तुमको एक्सप्लेन किया ना, ये फाइल तुमको शेयर करता ना मैं, I'll share a raw file. You play with it. कहां पर हमको चाहिए कि तुम परफेक्ट आना चाहिए. मैंने तुमको सब कुछ सिखाया नहीं है. मैं आपको बेसिक पिवोट दिया. अब पिवोट के ऊपर तुम थोड़ा खेल के देखो. अरे इसका अलग आगे जाके एक दुनिया है, पावर पिवोट समझने के लिए मैंने आई जस्ट स्पेंट अराउंड 40-50 आवर्स इन अंडरस्टैंडिंग पावर पिवोट एंड डैक्स. मेरे को सी, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, सुन लो.
My objective is only to ignite your mind. My objective is to ignite mind. If the mind is ignited now, you can do lot of things. बट प्रॉब्लम ये है, तुम देखो ना अभी अपन एकत्व में तो अपना मेजॉरिटी क्रीम बच्चा आता है, तुम देखोगे तो लगभग 50% बच्चा ही आया है लेक्चर को, जबकि मैंने कल लेक्चर के अंदर बोला था कि हम ऐसा लेक्चर लेंगे, आज सुबह ग्रुप पे भी डाला था, तभी भी 50% बच्चे आए सिर्फ। अब ये as I progress further taking the sessions like this, number of students will come down. Pivot table एक बेसिक है, यही उम्र में अगर तुमको समझ गया, you start doing the playing with the data in real life, you will go mad. In case your parents are working in MNC, चलो हर एक के घर में पॉसिबल नहीं है, पेरेंट्स भाई बहन होते, उनको पूछ के देखो, तुम आज पिवोट टेबल का बात उनके सामने करेगा ना, तो तुमके पेरेंट को भी तुम्हारे बारे में प्राउड फीलिंग आएगा। That's what I told you in Ekathom. You are paid to a price in rupee terms. What you are going to get is a value. That value is huge. ब्रेन धीरे धीरे अप्रिशिएट होगा। आज आप प्ले करके देखो, खाना खाते खाते प्ले करो, आपके पास अगर डेस्कटॉप लैपटॉप है तो, मोबाइल है तो मोबाइल पे नहीं चलेगा, ये पिवोट टेबल मोबाइल पे नहीं चलता, मोबाइल या ऐप या टैब पे नहीं चलता, इट्स ओके। नहीं आपके पास अभी लैपटॉप घर पे या डेस्कटॉप नहीं है, इट्स ओके, यू लर्न इट आफ्टर सम टाइम। कुछ तो आपको पता चला कि भाई जो रिपोर्ट्स होते हैं, लाइक कॉस्ट शीट हो गया या कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया या डेटा हो गया, उस डेटा का अगर मेरे को एनालिसिस करना है, and you have a raw data in a row by column format, you can do the analysis the way you want. There is absolutely no restriction in the way that you want analysis. So just playing with the pivot table. मैं आपको जो सिखाया, आप खेलो ना डेटा के साथ। सी मैं आपको फाइल शेयर करेगा, अभी लेक्चर खत्म होने के बाद शेयर करेगा, क्या होगा उससे? तुम डेटा में कुछ भी कर लिए, क्या होने वाला है? तुम्हारा कंप्यूटर में तो वायरस नहीं आने वाला है, कुछ नहीं वाला। बट प्रॉब्लम यही है, अभी 360 बच्चे लेक्चर को आए, बाकी बच्चे लेक्चर को आए नहीं, और अभी वो परेशान करते रहेंगे, सर प्लीज सेंड अ रिकॉर्डिंग, ये नहीं देने वाला। सो बच्चा खेलता ही नहीं डेटा के साथ। मैंने आपको बेसिक XIRR कैलकुलेट करने को बोला था, बहुत कम बच्चों कैलकुलेट करते हैं। या तुम खेलो ना, इस उम्र में जब तुम खेलोगे ना बच्चों डेटा के साथ, तब जाके तुम प्यार में पढ़ोगे। तुमको प्यार में पढ़ने के लिए बाकी बहुत सारी चीजें हैं, बाकी बहुत सारे अट्रैक्शन है, आई नो बहुत सारी चीजें, बट इस चीज के प्यार में पढ़ो, बाकी चीजें भी तुमको धीरे धीरे मिल जाएंगी, बट दिमाग लगाओ। हाँ, अगर आपको भाई तुम बोलते नहीं यार मेरे को ये टेक्नोलॉजी डेटा एनालिसिस में इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं म्यूजिक में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, हाँ, अगर आपको वहां पे प्रोफिशिएंसी है, बहुत हाई लेवल का है, देन प्लीज परस्यू दैट। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली वे टू लिव द लाइफ, नो, बट सिंस यू हैव चोजन द फाइनेंस एज अ फील्ड, you need to play with the data, you need to understand the trends, and when you actually play with the real data and when you take a decisions, I can't show you unfortunately how I take a decisions in Ekatvam on the basis of the data, or in Satvik case, or while selling the subscriptions for another company that we run, TaxSutra. I can't share that. That is a real data. The privacy issues are involved out there, so that's why I had to take some raw data like this. बट तुम आर्टिकलशिप में जब जाएगा, तुम रियल डेटा पे खेलेगा। तो लेट्स मी सी वेदर आई कैन, नहीं यार दिखा नहीं सकता, चलो ये बहुत पुराना फाइल है, तो लेट मी जस्ट शो यू। ये कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस मैंने, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? नो, ओके, लेट मी शेयर। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन नाउ? एक कंपनी है, कंपनी का नाम मैं नहीं बताने वाला, इसका एक्चुअल डेटा है। जस्ट अ सेकंड, एक्सेल में क्यों नहीं जा रहा, मैं क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, जूम साला, अच्छा इधर क्लिक हो गया था, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। हाँ, ये एक्चुअल डेटा है, उनके अलग अलग प्लान्स थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज वे बैक आई क्रिएटेड अ शीट, पूरा एक्सेल, उनका ट्रायल बैलेंस लेके, ये यहाँ पे ट्रायल बैलेंस है, ग्रुपिंग, पूरा ट्रायल बैलेंस डाउनलोड किया था, पूरा ट्रायल बैलेंस किया, लेजर कोड से उनके अमाउंट है, डेटर्स अमाउंट, सब कुछ खतरनाक ऐसा ट्रायल बैलेंस है। देखो ये, दिस इज अ ट्रायल बैलेंस, ये एक्चुअल डेटा है बट पुराना डेटा है, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम शोइंग इट। मेरे पास ऐसा डेटा खेलने के लिए बहुत रहता है, मैं रियल लाइफ पे डेटा पे खेलता भी आजकल, अभी वो जमाना गया कि डमी डेटा पे तुम खेलते बैठो। तो ये ट्रायल बैलेंस का आइटम्स लिया, ग्रुपिंग किया मैंने पूरा, और उसके बेसिस पे मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गए, उनके प्लांट लोकेशंस थे, और लोकेशन कौन सा है, भोसरी में एक प्लांट था, हलोल में एक प्लांट था, चाकन में एक प्लांट था, और एक असल करके एक प्लांट था। तो
असल का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, ये यहाँ पे क्लिक किया, डेटा नीचे चेंज हो गया, देखा कि तुमने? सेल्स चेंज हो गए, एक्साइज ड्यूटी, नेट सेल्स, उस जमाने में एक्साइज ड्यूटी हुआ करता था, कंपोनेंट सेल्स, टूलिंग सेल्स, सेल्स का आइटम आ गया, अदर इनकम आ गया, तो ये एक्सपेंसेस आ गए। तो आई वांट अ चार्ट फॉर्म, तो चार्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया इमीडिएटली। देखो डिटेल्स में गया, मैं उधर चार्ट पे क्लिक किया, चार्ट बन गया। मेरे को कौन सा चीज का चार्ट चाहिए? मेरे को चाहिए पावर एंड फ्यूल का चार्ट। मैं पावर एंड फ्यूल पे क्लिक किया, यहाँ पे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर पे क्लिक करेगा, इमीडिएटली आ गया पावर एंड फ्यूल का चार्ट। अबे साला खतरनाक ना, खतरनाक। अप्रैल 2005, अप्रैल 2006, अप्रैल मई 2005, तो मेरे कंपैरिजन मिल गया मेरे को। अप्रैल महीने का कंपैरिजन 2005 2006, मई महीना 2005 2006, जून, ये मैंने उस टाइम का क्वार्टर का ऑडिट किया होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी, पावर एंड फ्यूल के अंदर क्या क्या आता है? पावर एंड फ्यूल के अंदर मल्टीपल लेजर अकाउंट से इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना हुआ, डीजल के ऊपर खर्चा कितना हुआ, जनरेटर हायर चार्जेस पे खर्चा कितना हुआ, वाटर चार्जेस पे क्या खर्चा हुआ, एंड दैट एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। अबे साला, देखो चार्ट क्या बन गया, खतरनाक, मंथ बाय मंथ आ गया, और उसके ऊपर सेल्स का परसेंटेज का लाइन आ गया। दिमाग दिमाग। सो यू कैन, ये लोकेशन बाय लोकेशन आ गया। प्लांट असल मैंने सिलेक्ट किया था, वहां पर डिटेल्स में पूरा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तो यहाँ पे जाता मैं वापस, वहां पे गया, प्लांट मैंने चेंज किया, मेरे को सिर्फ भोसरी का डेटा चाहिए, मैं भोसरी के ऊपर क्लिक किया, चार्ट पे गया, भोसरी आ गया उधर, ऑटोमेटिकली चार्ट बना लिया उसने, भोसरी प्लांट का चार्ट बना दिया। वट एवर यू वॉन्ट, मंथली चाहिए, एनुअल चाहिए, मंथली नहीं चाहिए, मैंने मंथली निकाल दिया, तो मैं चार्ट पे वापस जाता, मंथली निकाल दिया मैंने, चार्ट पे गया मैं, देखो तो मेरा अब एक्चुअल्स बाय मंथ आ गए, मैं क्लिक करता तो आ गया डेटा। डेटा बदलता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड डेटा हैज अ ह्यूज पावर इन दिस एज। यू आर 18-year-old kids or 19-year-old kids. If you people start, if you people just start to begin up with this playing of data, over a period of time you will develop lot of interest. I thank you for spending this 1.5 hour or 1 hour and 20 minutes. मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक बोला पाइवोट टेबल का, पिवोट टेबल, कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ फंक्शंस है, ऐसे हम संडे संडे खेलते रहेंगे। बाय बाय, हैव अ लंच, अ डिनर, टुमारो मॉर्निंग 7 o'clock डॉट शार्प टाइम, राइट? बाय बाय।